So today we'll be doing the skeleton of the agree disagree essay. Okay. So we'll be doing the skeleton. Like yesterday we did the skeleton of the problem solution essay. Today we'll be doing the skeleton of the agree disagree essay. Okay. Can you see these three essays written here? Yes, ma'am. So whenever you get an agree disagree essay, what you have to do is what you can do whenever you get an agree disagree essay. The options you have are you can strongly agree or disagree. Okay, you can strongly agree or disagree. Number two is the second option you have is agree or disagree with a concession. Okay. You can either strongly agree, disagree, or you can agree or disagree with a concession. Okay, that is what you can do. When you get any agree, disagree essay, you can do either strongly agree or disagree, or you can do agree or disagree with a concession. Now, this is the first essay that we have taken up to do today. This is an agree, disagree essay. We'll see. And in an agree disagree essay, what you write in your introduction determines how you will frame your essay. Okay, what you write in your introduction determines how you will frame your essay. So the essay topic is interviews form the basic selection criteria for most large companies. Is this somebody saying, or is it a fact? Fact. Yes, it's a fact. Okay. Now the question comes. However, some people think that an interview is not a reliable method of choosing whom to employ, and there are other better methods. To what extent do you agree or disagree? Okay. So either you can strongly agree or disagree. अगर आप strongly agree करोगे, कुछ लोग कहते हैं, एक उन्होंने फैक्ट दिया है, इंटरव्यूज बेसिक सिलेक्शन क्राइटेरिया बहुत सी लार्ज कंपनीज का. कुछ लोग कहते हैं कि इंटरव्यू रिलायबल नहीं है और अदर मेथड्स बेटर है. ठीक है, आप स्ट्रांगली एग्री करते हो तो आप बोलोगे हाँ इंटरव्यू रिलायबल नहीं है और बाकी मेथड बेटर है, और फिर आप अपने ऐसे में इंटरव्यू के नुकसान, जो उसके शॉर्टकमिंग्स हैं इंटरव्यू के जो है, और साथ में बाकी जो मेथड बेटर आपने बताए हैं उनके बारे में लिखना है, और उन मेथड्स की अच्छे पॉइंट्स लिखने हैं. सो व्हेन यू स्ट्रांगली एग्री, यू विल राइट, फिर आपकी इंट्रोडक्शन क्या बनेगी? सबसे पहले तो आपने पैराफ्रेज वाली लाइन बनानी है जो फैक्ट की है. फैक्ट की लाइन की पैराफ्रेज क्या बनेगी? उसकी बनेगी इट इज अनडिनाइबल ये ना आईफोन जो भी है आपके पीछे डिस्टरबेंस है बेटा, मैं म्यूट करती हूँ आप फिर अनम्यूट कर लेते हो. आई डोंट नो व्हाई. जब आपने कुछ पूछना नहीं बोलना नहीं अनम्यूट क्यों कर रहे हो? ओके. सो ये है इंटरव्यूज जो है स्ट्रांगली एग्री करो, इट फिर आप अपनी पैराफ्रेजिंग करो. इट इज अनडिनाइबल दैट मोस्ट कंपनीज rely on interviews
for hiring new employees. ये फैक्ट है जो ऊपर दिया हुआ है फैक्ट, इसकी पैराफ्रेजिंग कर दी है. अब हमने इस सेंटेंस की पैराफ्रेजिंग करनी है जो कुछ लोग कहते हैं, ठीक है. आप इसी सेंटेंस के साथ उसको जोड़ सकते हो. बट से आप कंजंक्शन होता है ना, बट इससे सेंटेंस जोड़ सकते हो. बट सम पीपल बिलीव, आईफोन मैंने आपको ना रूम से बाहर कर देना है अगर आपने म्यूट नहीं करा. आप आई डोंट नो हु दिस स्टूडेंट है, नाम भी नहीं है, मैं बार बार म्यूट कर रही हूँ, आपके पीछे डिस्टरबेंस है, आप समझ ही नहीं रहे हो. What to do? Please, can other students guide me? She is not listening or he is not listening to me. मैं सारी क्लास छोड़ के उसको म्यूट करती हूँ, फिर अपने आप को अनम्यूट कर लेते हैं. मैम आप सबका माइक डिसेबल कर दीजिए, ये पॉसिबल होगा. माइक डिसेबल ऑटोमेटिकली आप अपने आप से कर सकते हैं शायद. मैं म्यूट ऑल करती हूँ, वो भी म्यूट हो जाती है और फिर उसके बाद she unmutes for no reason. I don't understand. 5th time it has happened. अब मैंने निकाल देना बाहर रूम से. ओके. तो ये है interviews form the basic selection criteria for most large companies. However, some people think that an interview, ये question है, it is undeniable that most companies rely on interviews for hiring new employees, but some people believe that the dependence on interviews, ये अभी paraphrasing चल रही है, interviews is wrong and other alternatives should be preferred as they are better. मैम लिखा नहीं जा रहा मैम. Wrong and other alternatives should be preferred as they are better. तो ये हमारा 2 sentence intro का first sentence हो गया. This is the paraphrasing. Now you have to in one sentence write whether you agree or you disagree. Now if you strongly agree, तो आप क्या लिखोगे? I agree that the interview is not a reliable method and other methods should be considered. ठीक है? तो आप लिखोगे I strongly agree that the interview is not dependable and so other methods should be considered. ठीक है, ये हो गया strongly agree. ठीक है, अब आपका skeleton क्या बनेगा? Para 1, why interview is not reliable. तो इसके लिए आप सेंटेंस क्या बनाओगे? There are many reasons why I believe that, लिखो चाहे नहीं लिखो, why interview is not reliable method. मेथड. ठीक है, और पैरा 2 क्या बनाओगे? और फिर इसके बाद आप फर्स्टली, सेकेंडली या टू बिगिन विद करके अपना शुरू कर दोगे, क्योंकि आपने स्ट्रांगली एग्री करा है कि इंटरव्यू रिलायबल नहीं है. ठीक है, फिर पहला पैरा क्या बना दोगे? इंटरव्यू के में जो कुछ गलत हो सकता है, इंटरव्यू के बीच में जो भी उसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो डालोगे.
पैरा 2 में आप लिखोगे विच अदर मेथड्स आर बेटर. बेटर इसमें आप लिख सकते हो, कोई एक मेथड भी ले सकते हो. दैट वन It should be past experience or industrial training. हाँ, इट कैन बी पास्ट एक्सपीरियंस से बेटर है ना. आप इंटरव्यू के अगेंस्ट रिक्रूटिंग मेथड्स में बोल रहे हो, तो रिक्रूटिंग मेथड में आप दूसरा बोल सकते हो, ग्रुप डिस्कशन या रिटन टेस्ट. ठीक है, Exam, yes, ma'am. With written test we can write. वन मेथड, good method which can replace the interview is the written test. ठीक है, और फिर इस पैरे में आप लिख सकते हो, इसको फिर एक्सपैंड कर दो. रिटन टेस्ट क्यों यूजेबल है? इट कैन जज द थ्योरेटिकल नॉलेज ऑफ द कैंडिडेट and know whether he is he is able for the job or not. फिर आप ग्रुप डिस्कशन, another method, आप ग्रुप डिस्कशन कर सकते हो. ठीक है, ठीक है. और फिर आप तीसरे पैरे में डाल सकते हो जो है द बेस्ट मेथड इन माय ओपिनियन, the best method to hire is to have a combination of all these, written test followed by group discussion followed by interview. ठीक है, is to have a combination of these three methods. अब आपके 3 पैरे प्लान हो गए strongly agree करके. ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ ये सारे मेथड्स का कॉम्बिनेशन लिख दो और कंक्लूजन में वही बात को रिपीट कर दो. कंक्लूजन में वही बात को रिपीट कर दो दैट जो ऊपर आपने लिखी है. ठीक है, टू सम अप, I would like to reiterate that other methods supersede the interview for. Ma'am, supersede meaning? उनसे बेटर है, उसके ऊपर Okay. है. ठीक है, for hiring purposes. ठीक है, तो ये आपकी कंक्लूजन होगी. ये स्ट्रांगली एग्री हो गया. जो इंद्रूप ने ऐसे लिखा हुआ है वो स्ट्रांगली डिसएग्री करके लिखा हुआ है. ठीक है, और उसने स्ट्रांगली डिसएग्री करके क्या लिखा है मैं आपको अभी स्ट्रांगली डिसएग्री करके भी बताती हूँ. अब मैं कॉपी पेस्ट करूंगी तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा. अब स्ट्रांगली डिसएग्री करके इसका ऐसे बना है. स्ट्रांगली डिसएग्री करके उसने बनाया है ये वाला तो ऐसा चलेगा. ऊपर से मैं एक सेंटेंस इसका करती हूँ इंट्रोडक्शन का. आपका ये इंट्रो है. I strongly disagree. ठीक है, I strongly disagree that the interview is not dependable. I strongly disagree as I believe. या I believe कर दो ना. I strongly disagree, वो strongly disagree imply हो जाएगा.
वो imply that the interview is a reliable method, is a dependable method, and the other methods cannot be considered more effective, and the other methods cannot be considered more effective. ये strongly disagree है, ये समझ आ गया? strongly disagree, इसमें मैंने कह दिया कि मैं तो disagree करता हूँ कि इंटरव्यू जो है वो dependable नहीं है, और other methods can और जो बाकी मेथड है वो इससे ऊपर नहीं है, वो इससे ऊपर नहीं है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, पैरा 1 में इसमें फर्स्ट पैराग्राफ में इंटरव्यूज इज रॉन्ग, तो इंटरव्यूज के साथ आर आएगा, इज आएगा? डिपेंडेंस के लिए इज है ना, इंटरव्यू पे जो डिपेंडेंस है वो इज रॉन्ग है। मैम व्हाई इट इज रॉन्ग? उसने तो रॉन्ग के तो कुछ ऐसा कुछ बोला ही नहीं है उसने क्वेश्चन में। इंटरव्यू इज नॉट रिलायबल, डिपेंडेंस है ना, तो Reliable हाँ, तो मैंने कह दिया इट इज, सम पीपल बिलीव कि डिपेंडेंस रॉन्ग है, तो मैंने लिख दिया इंटरव्यू इज डिपेंडेबल मेथड। मैंने स्ट्रांगली डिसएग्री कर दिया, इसी से पता चल गया कि डिपेंडेबल है, एंड अदर मेथड जो है इससे ऊपर नहीं है, इससे कम है। स्ट्रांगली डिसएग्री हो गया मेरा। अब मैंने आपको ना एक ही एस्से में स्ट्रांगली एग्री करके भी एस्से बना दिया है। स्ट्रांगली एग्री करके मैंने कह दिया हाँ ये सबसे अच्छा मेथड है, ओके, सम पीपल थिंक इंटरव्यू सबसे अच्छा नहीं है, ओके, और मैंने स्ट्रांगली एग्री करा कि सबसे अच्छा नहीं है, बाकी इससे बेटर है, तो बाकी मेथड्स का इंटरव्यू के ऊपर जो बेनिफिट है वो बता दूंगी कि इंटरव्यू से किसी की बेसिक नॉलेज थोड़ी देर की इंटरव्यू में पता नहीं चल सकता इसको कितनी नॉलेज है, रिटन टेस्ट से ज्यादा पता चलेगा। ठीक है, और सेकेंडली ग्रुप डिस्कशन है वो बेटर है, क्योंकि ग्रुप डिस्कशन से बंदे की इंटरपर्सनल स्किल्स का पता चलेगा जो काम के लिए बहुत जरूरी है, इंटरव्यू में नहीं पता चलता ये बातें। तो मैंने इंटरव्यू से कंपेयर करके बाकी मेथड को बेटर बताना है इस एस्से में जिसमें मैंने स्ट्रांगली एग्री करा है। तो ये आपको समझ आ गया। अब मैंने इस एस्से में जो बुक में हमारे लिखा हुआ है उसमें स्ट्रांगली डिसएग्री करा है इन ग्रुप में, और उसने लिखा हुआ है ऐसे, उसने कहा है कि मेरा मानना है कि इंटरव्यू सबसे अच्छा है और बाकी मेथड इससे कम है, इससे अच्छे नहीं है। तो मैंने इंटरव्यू के गुण गाने हैं पैरा 1 में। देयर आर मेनी रीजन व्हाई इंटरव्यू इज अ गुड मेथड आर सुटेबल, ओके, देयर आर मेनी रीजंस व्हाई इंटरव्यू इज अ सुटेबल मेथड। तो इसका क्या फर्स्ट लाइन बनेगी? There are many reasons why interview is a suitable, is the most suitable करूंगी, is the most suitable method. or can we write is the worldwide accepted? Right, accepted तो फैक्ट है ना, अब हमने suitability की बात करनी है कि सबसे ज्यादा Okay. अच्छी है, ये कहना है। वो तो फैक्ट Right. दिया है कि कई कंपनीज इंटरव्यू लेती हैं। ठीक है, is the most suitable method for hiring, for recruiting या hiring। ठीक है, अब इसमें इंटरव्यू के मैंने गुण गाने हैं कि इंटरव्यू से क्या क्या हो सकता है। ठीक है, इंटरव्यू से हमें बंदे की हर चीज पता चल सकती है, बस वो आप बुक में से ऐसे पढ़ोगे, आई शेयर द ऐसे आल्सो, यू विल रीड, क्योंकि वो ऐसे इसी पे बेस्ड है, स्ट्रांगली डिसएग्री पे। और पैरा 2 में अदर मेथड जो है वो इंटरव्यू से क्यों कम है उनका जिक्र करना है, और क्यों वो इंटरव्यू से कम है। ठीक है, क्यों इंटरव्यू उनसे बेटर है, ये मैंने पैरा 2 में बताना है दूसरे मेथड्स को बता के। ठीक है, क्योंकि इंट्रोडक्शन में हमने बोला है कि बाकी मेथड इससे कम है, तो मुझे ये प्रूव करना है कि इंटरव्यू ही सबसे अच्छा है, तो मेरा स्ट्रांगली डिसएग्री हो गया ऐसे। ये समझ आ रही है आपको बात? एक ही ऐसे को मैं दोनों तरफ से करके आपको समझा रही हूँ कि जो आप इंट्रोडक्शन में लिखते हो वो सपोर्ट करो, आपका ऐसे हाई स्कोरिंग जाएगा। ठीक है, और आपके व्यूज कुछ भी हो सकते हैं, आपको इंटरव्यू बेस्ट लग सकता है, आपको बाकी मेथड्स बेटर लग सकते हैं, तो आप जो आपको लगता है जिसको आप सपोर्ट कर सकते हो उस वे में आप अपना ऐसे रख सकते हो। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. हाँ, सो इन दूसरा है although in addition
तो ये मैं अभी इंटरव्यू को ही सपोर्ट कर रही हूँ कि वो बेटर है. इन एडिशन, अगला पैरा शुरू ऐसे कर रही हूँ. ऑल्दो there are many other methods for hiring, none of them could be considered superior to interviews. ठीक है. और फिर मैंने एक मेथड की बात कर देनी है, रिटन टेस्ट की बात करूंगी कि वो थ्योरेटिकल नॉलेज तो जज करती है पर पर्सनालिटी के बारे में कुछ नहीं बता सकती. और एम्प्लॉयर जो इंटरव्यू से एम्प्लॉयर पर्सनालिटी भी जज कर सकते हैं ऑफ द कैंडिडेट. और फिर मैं अनदर सिलेक्शन प्रोसेस ग्रुप डिस्कशन है, उसमें वो सिर्फ उन जॉब्स के लिए अच्छा है जहाँ पे जैसे सेल्स की जॉब्स हैं या कुछ है. हर तरह की जॉब्स के लिए ग्रुप डिस्कशन से कुछ नहीं पता चलेगा. तो जिसकी कन्विंसिंग पावर है, जहाँ पे कन्विंसिंग पावर चाहिए किसी की, सिर्फ उन जॉब्स के लिए ग्रुप डिस्कशन अच्छा है. पर इंटरव्यू हर जॉब के लिए जो है कि रिक्रूटमेंट के लिए फिट है. तो ये आपके पैरा 2 और पैरा 3 कंपैरिजन के बन जाएंगे. सो आई होप यू अंडरस्टैंड दैट. एंड कंक्लूजन में आपने फिर वही चीज लिखनी है. अनदर यहाँ पे आप लिख सकते हो अनदर सिलेक्शन प्रोसेस इज दिस. और फिर उसको इंटरव्यू से कंपेयर करके बता सकते हो उसकी वो इंटरव्यू से ऊपर क्यों नहीं है. ठीक है. यहाँ पे आप कंपेयर कर दो विद द रिटन टेस्ट. और यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन. और बता दो इंटरव्यू क्यों उससे बेटर है. ठीक है. ये समझ आ गया आपको. एंड देन कंक्लूजन में वही बात रिएट्रेट करो अपनी. आई वुड लाइक टू रिएट्रेट दैट इंटरव्यू is justified as it has advantages over the other more advantages over the other commonly adopted methods. Interview is better than all. ठीक है. तो कंक्लूजन में टू सम अप, I would like to reiterate that reiterate का मतलब सबको पता है. that ये reiterate means restate, दोबारा कह रही हूँ, reiterate कर रही हूँ that preference for interview for hiring is justified. That the preference for interview for hiring among the employers. मैम लिखा नहीं जा रहा. Hiring among employers is justified as interviews have advantages over other commonly adopted methods. ये हो गया कंप्लीटली स्ट्रांगली डिसएग्री वाला ऐसे. अब आप कंसेशन कैसे करोगे इस ऐसे में. अगर आपने कंसेशन वाला मेथड, जो कई बच्चे जिसको पार्टली एग्री करते हैं, पार्टली एग्री वर्ड मत डालना कभी भी. नेवर यूज द वर्ड पार्टली एग्री. पार्टली एग्री से आप पता है क्या कर रहे हो. अगर आप इसको कहते हो आई पार्टली एग्री, ये ऐसे का टॉपिक है ना. अगर आप कहते हो पार्टली एग्री, फिर आप कहते हो इंटरव्यू रिलायबल भी है और नहीं भी रिलायबल है, और बाकी मेथड बेटर भी है और नहीं भी बेटर है. तो आप बताओ ये बात बनेगी. विल इट बी ओके?
No, either ma'am. you can completely agree with something or you can completely disagree. अब completely agree और completely disagree में, completely agree में you can either strongly agree or you can agree with a concession. ठीक है, अब concession इसमें कैसे दे सकते हो? आप कह सकते हो although interview is a good method, ठीक है, although it is a good method, other methods are definitely better. तो ये कंसेशन हो गया. फिर आप पता है क्या करोगे, जैसे यहाँ पे आपने इंटरव्यू के नुकसान लिखे हैं ना, यहाँ पे भी इंटरव्यू के फायदे लिखोगे और बाकी मेथड जो बेटर हैं उनके जो इंटरव्यू के ऊपर एज है वो लिख दोगे. तो आपने एक कंसेशन के साथ करा है, कंसेशन दिया है आपने, मतलब आपने कहा है कि ऑल्दो ये गुड मेथड है, ठीक है, गुड मेथड है, रिलायबल है, पर बाकी मेथड इससे डेफिनेटली बेटर है. तो ये एग्री विद ए कंसेशन हो गया, स्ट्रांगली एग्री नहीं हुआ. ठीक है, स्ट्रांगली एग्री करते हो तो फिर आप कहते हो रिलायबल नहीं है इंटरव्यू, बाकी बेटर है. आप कंसेशन देते हो कि इंटरव्यू भी अच्छा मेथड है पर बाकी डेफिनेटली बेटर है. ये आपको ये समझ आ गया कंसेशन वाला पॉइंट? Yes, ma'am. इसमें भी एग्री कर रहे हो, कंसेशन में भी आप एग्री कर रहे हो, पर आप इंटरव्यू को नीचा नहीं दिखा रहे हो. आप इंटरव्यू को कह रहे हैं हाँ ठीक है अपनी जगह पे, पर बाकी मेथड इससे बेटर है भाई. तो आपने एग्री मैम, करा है. मैम ऐसे हम इसे पार्शली ही मानेंगे ना, वैसे ये पार्शली ही हुआ ना, दोनों के बेनिफिट से मेरी बताने फिर तानिया, मेरी ये बात समझ लो, अगर आप पार्शली ही मान रहे हो और आपने पार्शली वर्ड डाल दिया ना, आप पार्शली, नहीं मैम, पार्शली हाँ, वर्ड नहीं डालना तो इसमें. फिर वो concession is in a way partial, but don't use the word partial. But you are not saying, you are not going saying interview good भी है bad भी है. ओके ये तो नहीं कह रहे हो ना कि good भी और bad भी है. मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि हम इसे अपने मन में इसे पार्शली कंसीडर कर रहे हैं कि ये पार्शली है ना, बट मन में यहाँ पे कंसीडर करो, पर मन में भी पार्शली वर्ड को मत लाना, अगर लिखा गया तो कैटास्ट्रोफिक हो जाएगा. ओके, ओके मैम, बट मैम हमने इन टॉक दोनों अबाउट के इट लाइक ए कंसेशन. ओके, दोनों के आप मतलब कह रहे हो कि कि हाँ जी, इंटरव्यू अच्छा है अपनी जगह पे, पर डेफिनेटली बाकी बेटर है, बाकी बेटर है. आपने दो पैरास में बाकी मेथड्स के इंटरव्यू के ऊपर एडवांटेजेस ही लिखने हैं जैसे आपने इसमें लिखे हैं, पर स्ट्रांगली एग्री में आपने इंटरव्यू को क्या कर दिया, रिलायबल नहीं बताया, उसकी खामियां बताई हैं. जी पर आपने जो प्लेन एग्री है कंसेशन का, उसमें आपने कह दिया इंटरव्यू अपनी जगह ठीक है पर बाकी बेटर है. बेटर आपने फिर भी एग्री करा है ना, हाँ जी तो आपने मेन पॉइंट से एग्री करा है ना कि पार्शियली एग्री करा है? ये मैम, बताओ, ओके. मेन पॉइंट से आपने एग्री करा है कि पार्शियली एग्री करा है? मेन पॉइंट से कि बाकी पार्शली बेटर है. पार्शली मैम, मतलब कि वो अच्छा है नहीं बट नहीं बाकी नहीं, ज्यादा मेरी है. बात, आप मेरी बात समझ ही नहीं रहे. मेन पॉइंट है कि बाकी मेथड बेटर है. हाँ आपने जी मेन पॉइंट से एग्री करा है कि पार्शियली एग्री करा है? मैम, मैं आपकी बात नहीं समझ पा रही. मेन पॉइंट है कि बाकी मेथड बेटर है इंटरव्यू से. मेन हाँ पॉइंट जी, ये है, मेन हाँ पॉइंट से जी, आपने एग्री करा है कि पार्शियली एग्री करा है? अग्री मैम. हाँ, तो फिर क्लियर हो गया ना. आपने हाँ जी, पार्शियली एग्री नहीं करा ना. नहीं मैम. हाँ, तो पार्शियली वर्ड क्यों ला रहे हो बार बार? यू आर कंफ्यूजिंग ऑल द अदर 45 स्टूडेंट्स इन द क्लास. सॉरी मैम. हाँ, पार्शियली एग्री वर्ड मींस कि बाकी मेथड बेटर भी है और नहीं भी बेटर. आप वो कह रहे हो. एग्री का मतलब बाकी मेथड बेटर है, आप एग्री कर रहे हो कि डिसएग्री, आप पार्शियली एग्री कर रहे हो बाकी मेथड बेटर है. आप बाकी मेथड बेटर ही बोल रहे हो ना अल्टीमेटली. यस मैम. एग्री कर रहे हो ना, आप हाँ मेन जी, पॉइंट से एग्री कर रहे हो ना. हाँ जी, हाँ जी. हाँ, तो पार्शियली एग्री कहाँ है? आप बाकी मेथड बेटर भी है और नहीं भी बेटर है. सिर्फ मैम क्लियर हो गया. उसने जो इनिशियली बोला है कि इंटरव्यू रिलायबल नहीं है, आपने हाँ उसको जी बोला है कि अपनी जगह वो ठीक है पर बाकी बेटर है, आप एग्री कर रहे मैम, अंडरस्टैंड द पॉइंट मैम. हो. यू अंडरस्टूड द पॉइंट, ठीक है. यस मैम. और अगर आप स्ट्रांगली एग्री करते हो तो आप कहते हो इंटरव्यू बिल्कुल रिलायबल नहीं है, इसके नुकसान है और बाकी मेथड्स बेटर हैं. बाकी बेटर है मेन पॉइंट है, उसके साथ अभी आपने एग्री करा है, पर आपने पहले हिस्से को भी कर दिया है कि इंटरव्यू, मतलब स्ट्रांगली एग्री करके कह दिया कि इंटरव्यू तो बिल्कुल रिलायबल नहीं है, और फिर इंटरव्यू के नुकसान लिख दिए. ठीक है, जी मेन पॉइंट से तो आपने एग्री करा ना कि बाकी बेटर है, उसमें भी हाँ आपने जी. ये लिखना है कि बाकी बेटर है, पर आपने कंसेशन दे दिया एक में कि इंटरव्यू की अपनी जगह इंटरव्यू सही है बट बाकी मेथड डेफिनेटली बेटर है. ठीक है,
यस मैम। तो आपको तीनों मेथड समझ आ गए, कंसेशन का मतलब समझ आ गया अच्छे से? मैम उसका Yes, थोड़ा समझा देंगे फिर से कंसेशन का? ऐसे का टॉपिक कह रहा है, कुछ लोग कहते हैं कि इंटरव्यू रिलायबल नहीं है एंड अदर मेथड्स आर बेटर। ओके, आपने अपनी इंट्रोडक्शन में लिखा अदर मेथड्स आर बेटर, ठीक है? यस मैम। आपने फिर एग्री कर दिया ना इससे के साथ? यस यस। हाँ, और अगर आपने एग्री करा है तो आपने ये वाले हिस्से के साथ भी अगर एग्री कर दिया नॉट ए रिलायबल मेथड, तो फिर आपने स्ट्रांगली एग्री कर दिया, क्योंकि क्वेश्चन के दो हिस्से हैं, इंटरव्यू नॉट रिलायबल, अदर आर बेटर। आपने इसके साथ भी स्ट्रांगली एग्री कर दिया कि ये रिलायबल नहीं है, और आपने इसके अगेंस्ट लिख दिया एक पैरे में। ओके मैम। अब आपने सिर्फ एग्री करा है अदर मेथड्स आर बेटर, आपने एग्री कर दिया, और आपने इस मेथड को रिलायबल भी कह दिया। आपने कहा वो अपनी जगह रिलायबल है पर बाकी बेटर है। यस आपने ओके क्या ओके। करा, इसको कंसेशन दे दिया। अब आपने पहले पैरे में इंटरव्यू के नुकसान नहीं लिखने, उसके भी जो बेनिफिट्स हैं वो लिख देने हैं, पर दो पैराज में जो बाकी मेथड्स हैं उनके जो ओवर द इंटरव्यू बेनिफिट्स हैं वो लिख ओके 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 ओके, गॉट इट। यस मैम। समझ गए? यस अब मैम। आपने इस पॉइंट से तो दोनों केसेस में एग्री ही करा है, राइट मैम। और पहले केस में स्ट्रांगली एग्री करके इसको भी कह दिया कि ये रिलायबल ही नहीं है, और उसके भी नुकसान लिख दिए। और दूसरे केस में आपने इसको कंसेशन दे दिया कि रिलायबल है। नॉट ए रिलायबल कहना गलत होगा, रिलायबल है, उसकी अपनी रिलायबिलिटी है। दैट इज व्हाई बड़ी कंपनीज इसको सिलेक्ट कर रही हैं, वो उसकी अपनी अहमियत है, पर बाकी मेथड डेफिनेटली बेटर है। ओके ओके, गॉट इट। यस मैम। अच्छे से समझ आ गया पॉइंट? अच्छे से आ गया। हाँ, अब आपने स्ट्रांगली आई पार्शली एग्री विद दिस। बच्चे पूछते हैं ना मैडम एक पैरा एग्री का एक डिसएग्री का बना दे, फिर बैंड नहीं आते, फिर कहते मैम अच्छा भला एक एग्री का बनाया था एक डिसएग्री का, पता नहीं 5.5 क्यों दे दिया एग्जामिनर को, समझ ही नहीं आई मेरा ऐसे। Ma'am, may I ask you something? यस, Ma'am, that means one paragraph disagree का and two paragraph agree. But disagree में हम उसकी negativity नहीं show करेंगे, उसकी positivity show करेंगे, right? डिसएग्री हो गया। Yes, ma'am. अगर I largely agree with the statement, तो हाँ, ma'am 3 paragraph बनेंगे जिसमें one disagree and two agree. अच्छा, But उस पहले को disagree, शुरू कैसे करोगे डिसएग्री को? आई डिसएग्री विद दिस पॉइंट। no, मैम फर्स्ट पहले मेन पॉइंट दे देंगे, देन उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे उसको। बट मैम उसको हम मतलब ये भी नहीं कहेंगे कि इंटरव्यू हमारे लिए गलत है, तो इंटरव्यू के हम डिसएग्री में हम उसकी पॉजिटिविटी शो करेंगे या नेगेटिविटी? बस मेरा मेन क्वेश्चन ये था कि हम उसकी पॉजिटिविटी शो करेंगे डिसएग्री कैसे? डिसएग्री का पैरा बनेगा तो उसको शुरू कैसे करोगे? आई डिसएग्री विद दिस। नो मैम, इसका तो आप इसको हम इस ये वे में, आप मेरी बात सुनो मनप्रीत, आप इसको इस वे में क्यों नहीं पुट करते कि एक पैरा कंसेशन का लिखेंगे और दो पैरे एग्री के लिखेंगे? इसको इस वे में क्यों नहीं पुट करते? आप एक पैरा डिसएग्री का क्यों बोल रहे हो? मैम क्योंकि टॉपिक भी ऐसा है ना कि इंटरव्यू को हम डिनाई नहीं कर सकते, इसमें कंसेशन बहुत बेटर रहेगा। कंसेशन वर्ड ही यूज करो ना, डिसएग्री वर्ड क्यों यूज कर रहे हो? ओके, तो मैम कंसेशन में हम उसकी पॉजिटिविटी लिखेंगे या नेगेटिविटी लिखेंगे? कंसेशन क्या दे रहे हो कि इंटरव्यू अपनी जगह अच्छा है, तो अगर अपनी जगह अच्छा है तो फिर पॉजिटिविटी लिखोगे कि नेगेटिविटी लिखोगे? मैम कंसेशन हम दे रहे हैं कि मैम कंसेशन दे रहे हो कि इंटरव्यू रिलायबल है अपनी जगह पे पर बाकी मेथड बेटर है, तो आप रिलायबल है तो उसमें पॉजिटिविटी लिखोगे कि नेगेटिविटी लिखोगे? मैम रिलायबल पॉजिटिविटी लिखेंगे। तो फिर इसमें क्वेश्चन क्या राइज हुआ कंसेशन में? तो मैम बाकी की 2 पैराग्राफ में मैं एग्री करूंगी ना? बाकी के 2 पैराग्राफ में आप बाकी मेथड्स को बेटर बताओगे। यस मैम। समझ गए? ओके मैम। आपने इसमें भी वही एग्री करा है कि बाकी मेथड बेटर है, पर आपने ये कंसेशन दे दिया कि इंटरव्यू अपनी जगह अच्छा है, इसको नॉट रिलायबल नहीं बोल सकते, रिलायबल है, ठीक है, और बाकी मेथड बेटर है। समझ गए? अंडरस्टूड मैम। हाँ, ठीक है। तो अब आपको स्ट्रांगली एग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री एंड कंसेशन वाला भी आपको मैंने बता दिया। तो कंसेशन वाले की इंट्रोडक्शन कैसे बनाओगे?
मैम वाइल्ड सेंटेंस। हाँ मैं अभी आपको बताती हूँ, ये मैं कॉपी पेस्ट ही कर रही हूँ। एग्री विद ए कंसेशन। अब आप इसमें इट इज अनडिनाइबल दैट कंपनीज राइट, सारा सेंटेंस वैसे का वैसे ही रहेगा। आई बिलीव that while the interview is a dependable method, comma, other methods are definitely have an edge over have an edge over the interview. अब have an edge over means एक सिरा उनका ऊपर है बाकी मेथड्स का इंटरव्यू से, मतलब थोड़े बेटर है इंटरव्यू से। have an edge over, far superior नहीं लिखा मैंने। have an edge over का क्या मतलब है, समझ आ गया आपको? edge होता है किनारा, सिरा, edge। तो बाकी अगर आप इंटरव्यू को और दूसरे मेथड को रखोगे तो दूसरे मेथड्स का थोड़ा सा सिरा ऊंचा है इंटरव्यू से। समझ आ गई बात? ये आप स्लाइटली बेटर कह सकते हो। तो आपने एग्री कर दिया ना विद कंसेशन? आपने कहा कंसेशन दे दिया, इंटरव्यू डिपेंडेबल है पर बाकी मेथड्स उससे थोड़े ऊपर हैं। समझ आया कि नहीं? कंसेशन। यस मैम। तो कंसेशन वाला सेंटेंस वाइल वाला सेंटेंस है, ठीक है। अब अगर दूसरे मेथड बहुत ज्यादा बेटर आपने बताने इंटरव्यू से, फिर आप लिखोगे अदर मेथड्स आर फार बेटर देन द इंटरव्यू। ये समझ आ गया बात आपको? एज ओवर और फार बेटर का डिफरेंस समझ आ गया? एज ओवर मैम एक बार क्लियर कर दो। अच्छा ठीक है, मैं करती हूँ क्लियर। मैं ना एक मिनट, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ओके, ये देखो, ये है इंटरव्यू, ठीक है, और ये है अदर मेथड्स। दिस इज द इंटरव्यू, ये वाला, एंड दीज आर द अदर मेथड्स। ये वाले अदर मेथड्स हैं, ये इंटरव्यू। दिख रहे हैं दोनों? यस मैम, विजिबल। अब ये इंटरव्यू अदर मेथड्स इंटरव्यू से थोड़े से ज्यादा हैं, एज ओवर, इनका एज ऊपर जा रहा है। ओके मैम, समझ गए? वेरी नाइस मैम, बहुत अच्छे से और पता लग अगर आप गया। बोलो कि फार बेटर है अदर मेथड्स, तो आप ऐसे करोगे। समझ आ गया? यस हाँ? मैम, बिल्कुल। I think. चलो, so I hope now it is clear. Have an edge over कहाँ लिखना है and far better कहाँ लिखना है? यस मैम। यस मैम, क्लियर। हाँ, तो I think now it is clear, ठीक है। एंड कंसेशन वाला भी समझ आ गया। और इसके जो आपने बॉडी पैराग्राफ्स बनाने हैं, इसमें पहले पैरे में इंटरव्यू के फायदे ही लिखने हैं कि इंटरव्यू रिलायबल क्यों है, इंटरव्यू से ये होता है, और दूसरे पैरे में रिटन टेस्ट इंटरव्यू से बेटर क्यों है, और ग्रुप डिस्कशन इंटरव्यू से बेटर क्यों है, और फिर थर्ड पैरे में लिख दो कॉम्बिनेशन मेथड इंटरव्यू से बेटर क्यों है। नहीं तो उन्होंने सामने पूछना सीगा को कहते मम्मी की कहती। ओके, सो आई होप इट इज क्लियर नाउ। एक ऐसे को अच्छे से कर दिया तीनों वेज में, तो एग्री डिसएग्री का फॉर्मेट तो क्लियर हो जाना चाहिए आपको फ्रॉम दिस। यस मैम। ओके, नाउ वी विल डू वन मोर एसे।
मोस्ट चलो ये वाला ले लेते हैं. टुडे द लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ पीपल, इसको ले लो. Today the life expectancy of people is much higher than before. Some people think that older people should continue to be involved in the workforce. To what extent do you agree or disagree? अब आजकल लाइफ एक्सपेक्टेंसी लोगों की मच हायर है पहले से. ठीक है, अब ये फैक्ट है कि कोई कह रहा है लाइफ एक्सपेक्टेंसी हायर है? मैम फैक्ट है। फैक्ट है मैम. हाँ, तो ये फैक्ट है. अब ये कुछ लोग कहते हैं कि जो ओल्डर पीपल हैं उनको कंटिन्यू करना चाहिए वर्कफोर्स में, मतलब रिटायरमेंट एज बढ़ानी चाहिए. ये रिटायरमेंट एज कैसे है कि कुछ लोग कहते हैं कि रिटायरमेंट एज को बढ़ा दो. क्या आप इससे सहमत हैं कि असहमत हैं? ठीक है, अब आप इससे स्ट्रांगली एग्री कर सकते हैं कि रिटायरमेंट एज बढ़ा दो. ठीक है, इसको कैसे लिखना है? मैं थोड़ा सा कॉपी पेस्ट कर लिया बिकॉज इट विल सेव टाइम. ये it is true that longevity, this is longevity. It is true that longevity means life expectancy बढ़ गई है, लोग लंबा जीने लग गए हैं. Longevity has led to an increase in the ability of people to work for longer years, and therefore some people hold the opinion that the older people should retire later in life. Although extended employment may lead to certain problems, I believe that the elderly people should be retired at a later age if they are interested. अब देखो, although retirement age बढ़ाने की problems आएंगी, ये concession दे दिया मैंने, पर मैंने agree करा है with a concession. अब आपको concession वाला point समझ आ गया अच्छे से? मैंने disagree और agree नहीं करा, partially agree नहीं करा, मैंने agree ही करा है, पर मैंने कंसेशन दे दिया है कि ऐसा करने के नुकसान तो होंगे पर ऐसा करना चाहिए. Got it? अल्टीमेटली मैंने एग्री करा ना कि ऐसा करना चाहिए. Yes, कमल, ma'am. आपके पीछे ना डिस्टरबेंस है. आई वुड सजेस्ट प्लीज कीप योरसेल्फ म्यूट. ओके, until and unless you have to speak and ask something. So it is true that longevity has led to an increase in the ability of people to work for longer years, and therefore some people hold the opinion that the older people should retire later in life. Although extended employment may lead to certain problems, I believe that the elderly people should be retired at a later age if they are interested. अब extended, अब क्या करना है आपने? Admittedly अगर retirement extend करी, अगर बढ़ाई, उसके ये नुकसान होने वाले हैं, आपने ये डालने हैं पहले पैरे में. समझ आ गया? क्योंकि हमने ये कंसेशन दे दिया है कि इससे नुकसान तो होंगे. फिर आपने सेकंड बॉडी पैराग्राफ हाउएवर से शुरू करके रिटायरमेंट एज एक्सटेंड करने के बेनिफिट लिखने हैं और वो 2 पैरास में लिख देने हैं, जो कि फिर आपका व्यू सही बनेगा कि उसको करना ही चाहिए, एक्सटेंड करनी चाहिए रिटायरमेंट एज, उसके फायदे ज्यादा होने वाले. तो ये कंसेशन है, ये पार्शली एग्री नहीं है, कंसेशन है. आपने कंसीड करा है कि हाँ इसके नुकसान है, वो मेरे को पता है नुकसान है, पर फिर भी करनी चाहिए. जो ये स्टेटमेंट कह रही है कि करनी चाहिए, करना चाहिए. नुकसान भी मुझे पता है पर करना चाहिए. फिर एक पैरा में नुकसान लिख दो और 2 पैरास में उसके. और अगर आपने स्ट्रांगली एग्री करा, फिर आप क्या कहोगे कि इट शुड बी एक्सटेंडेड, फिर आप नुकसान वाला पैरा नहीं बनाओगे. ये समझ आई आपको बात? यस मैम. हाँ जी. अगर आपने स्ट्रांगली एग्री करके नुकसान वाला पैरा बना दिया, ठीक है, यहाँ लिखो आई बिलीव, यहाँ पे लिखो आई स्ट्रांगली बिलीव that the elderly people should be retired at a later age if they are interested. ये हो गया I strongly believe. अब आपने जो इसके बॉडी, ये strongly agree वाला पहले मैं आपको बता रही हूँ. अब इसके बॉडी पैराग्राफ्स का भी स्केलेटन बता रही हूँ. strongly agree, ठीक है. अब मैं पूरा नहीं लिखूंगी पर आपको स्केलेटन दे दूंगी. strongly agree हो गया. अब ये हो गई आपकी इंट्रो, ठीक है. अब इसके बाद आपका आ गया बॉडी पैराग्राफ 1, जिसको आप BP1 बोलते हो. BP1, इसमें आप लिखोगे द प्रॉब्लम्स एडमिटेडली करके, एडमिटेडली extending the retirement age
would lead to some problems आपको पता ना वो क्या प्रॉब्लम्स हैं? फर्स्टली करके एक या दो प्रॉब्लम्स आपने लिखनी है, तो फर्स्टली करके लिख दोगे। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट समझ आ रही है? अगर बुजुर्ग काम करते रहेंगे तो यंग पीपल की नौकरियां नहीं बचेंगी, उनकी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। ये लिखोगे ना पॉइंट, इसका नेगेटिव क्या होगा? मैम Yes, जैसे ma'am. ये स्ट्रांगली एग्री कर रखा है तो नेगेटिव ये थोड़ी आएगा फिर प्रॉब्लम्स। हाँ स्ट्रांगली में नहीं आना। ओके ओके ओके, वेरी गुड, आपने मुझे टाइम पे करेक्ट कर दिया। ये पार्शियल वाले में है। फिर प्रॉब्लम इसमें आएगा, इसमें ये पार्शियल वाले में है। ये इसको कॉपी पेस्ट उसमें कर देती हूँ ना, सॉरी, ये पार्शली वाले में आएगा। पार्शली वाले का बॉडी पैराग्राफ 1 ये बनेगा, ठीक है। अब इसका जो बॉडी पैराग्राफ 1 बनेगा, देयर आर मेनी रीजंस why extending the retirement age is is the need of the hour. और फिर उसके बेनिफिट्स लिखोगे आप, ठीक है। फिर आप टू बिगिन विद कर दो, क्योंकि आपने दूसरा जो पैरा अपना है उसमें मैंने फर्स्टली लिखा हुआ है, तो एक पैरे में हर एक में टू फर्स्टली सेकेंडली मत करना, एक में टू बिगिन विद अनदर रीजन ऐसे करके लिख देना, ठीक है। और उसमें फर्स्टली और सेकेंडली कर देना, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट पैरा। फिर सेकेंड पैरा फर्दर मोर करके, फिर एक और पॉइंट डाल देना, ठीक है। और फिर थर्ड पैरा BP3 फाइनली कर देना। अगर आपने BP3 नहीं बनाना तो भी चलेगा, 2 में भी कर सकते हो। फाइनली कोई एक और बेनिफिट डाल देना, ये आपका हो गया। और कंक्लूजन में आप क्या करोगे? रीइटरेट करोगे कि ये करनी चाहिए। एक्सटेंडिंग द रिटायरमेंट एज इज डेफिनेटली टू सम अप, I reiterate that the retirement age should be extended. ठीक है, ये आपका हो गया स्ट्रांगली एग्री वाला। BP 1 2 3 सब में वाई करनी चाहिए, इंक्रीज करनी चाहिए। और अगर आपने कंसेशन दिया है फिर एडमिटेडली करके ये वाला पॉइंट डालोगे, और BP 2 और BP 3 में ऐसे करोगे। BP 2 में आप करोगे हाउएवर करके, हाउएवर फिर उसमें इज द नीड ऑफ द आवर, एक्सटेंडिंग द रिटायरमेंट एज इज द नीड ऑफ द आवर, जो आपने इसमें करा है। और फिर 2 पैराग्राफ्स में वो जो पॉइंट्स हैं। इसमें कंक्लूजन कुछ छोटा नहीं है, वो थोड़ा लंबा करके लिख दो सेंटेंस को। बेसिकली जिस्ट यही लिखना है आपने, रीइटरेट करना है दैट द रिटायरमेंट एज शुड बी एक्सटेंडेड एज, आप इसको थोड़ा एक्सटेंड कर सकते हो ना, गॉट योर पॉइंट मैम, ओके, as it would ease the life of the elderly to a large extent. अब मैंने देखो आपको बहुत लंबा करके बता दिया। and reduce the burden, and reduce some burden of double F वाला, of the government, ठीक है। गवर्नमेंट शोल्डर्स कर सकते हो, ऑफ द गवर्नमेंट्स शोल्डर्स। सरकार दे मोढियां तो थोड़ा भार घटा देगी, ठीक है। गवर्नमेंट्स को पेंशन वगैरह देनी पड़ती है ना। यस मैम।
वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट का भी थोड़ा भार कम हो जाएगा, एल्डरली की लाइफ बेटर हो जाएगी। तो सम अप ये हो गया। अब ठीक है, अब पसंद आ गया कंक्लूजन? वन सेंटेंस ही है, पर थोड़ा लंबा बनाना, इतना छोटा भी मत बनाना। ही वाज राइट, दैट इज व्हाई आई स्पेंड टाइम ऑन इट, ठीक है। तो ये BP2 है, और यहाँ पे फाइनली ये फर्दर मोर करके BP3 बनेगा। इसमें भी आपने एक्सटेंड करने के फायदे ही लिखने हैं। ये आपको समझ आ गया? एक फायदे में जो बुजुर्गों को फायदे होंगे एक पैरे में वो डाल देना, एक पैरे में जो सरकार को फायदे होंगे वो डाल देना, ठीक है। तो ये आपका प्लान हो जाएगा। और कंक्लूजन में वही लिख देना, फिर रिइटरेट करके। ऊपर आपने ऑल्दो के साथ बनाया है, और कंक्लूजन में वाइल के साथ बना देना, सेम सेंटेंस, थोड़े से और वर्ड्स इधर उधर कर देना। दैट इज इट। आई होप इट इज क्लियर। रिइटरेट ही करना है, तो कंक्लूजन में रिइटरेट ही करना है कि जो आपने ऊपर लिखा है, दैट while extending the retirement age may lead to the serious problem of youth unemployment, comma, it is definitely needed for the betterment of the elderly. ये ऐसे कर सकते हो, वर्डिंग बिल्कुल डिफरेंट होगी ऊपर से, ठीक है। आप उसको लिख सकते हो while to sum up. While ये please Gurs, please don't do these lines. While ये समझ आ गया आपको? ये कंक्लूजन बना सकते हो। डिफिकल्ट तो नहीं लगा ये? नहीं मैम, ठीक है। तो आपको ये बेस समझ आ गया, एग्री डिसएग्री ऐसे का स्केलेटन से कैसे लिख सकते हो। पर इसमें ये आपके पास ऑप्शंस होती है ना, इसलिए इसका थोड़ा सा टाइम लगा है 2 एसेज में ही समझाने में ऑलमोस्ट। तो पर आई होप दैट आई मीन यू गॉट अ टेक होम मैसेज फ्रॉम टुडेज क्लास कि आप अब एग्री डिसएग्री ऐसे भी हैंडल कर लोगे। आपको पहले ना ऐसे का टॉपिक पढ़ना है, और फिर ऐसे के टॉपिक को पढ़ के आपने ये सोचना है कि आप इसको कैसे हैंडल करना चाहते हो। स्ट्रांगली एग्री करना चाहते हो, स्ट्रांगली डिसएग्री करना चाहते हो। अपने पैरास के स्केलेटन्स रफ कॉपी जो आपका क्वेश्चन पेपर है उसमें बना लो, प्लान कर लो इससे। अच्छा, अगर मैंने स्ट्रांगली डिसएग्री करा, मैंने इस पैरे में ये पॉइंट डालना है, इसमें ये डालना है, इसमें ये डालना है। अगर आपको नई पॉइंट्स मिल रहे ना, फिर आप वाइल वाला सोचो। अच्छा, वाइल वाला करके मेरा बन जाएगा, ऐसे करके मैं इसके ये पॉइंट डाल दूंगी, फिर मैंने ये वाले पॉइंट डाल देने हैं। फिर आप अपना प्लान लगाने पे 3, 4, 5 मिनट जो आप खराब करोगे ना, वो अल्टीमेटली आपका डबल टाइम सेव करेंगे जब आप ऐसे लिखने लगो। प्लान करने में टाइम जो लगाया जाता है ना, वो टाइम वेस्ट नहीं होता, दैट इज ऑलवेज टाइम सेव्ड लेटर ऑन, ठीक है। सो आई होप आज की क्लास से आपको कुछ सीखने को मिला। एग्री डिसएग्री इससे भी आपका कवर हो गया। यस मैम। यस। अब मंडे को हमने करना है एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस या पॉजिटिव नेगेटिव डेवलपमेंट, कोई भी एक कर लेंगे। और फिर ट्यूसडे को ग्राफ की क्लास है, और फिर थर्सडे को लास्ट कर लेंगे, और सैटरडे वालों के एग्जाम डेट के पहले सारे हो जाएंगे कवर, ठीक है। ओके मैम अमन का वो क्लियर कर दो कि डबल ऑफ किसका क्लियर करना है? मैम शी इज आस्किंग दैट व्हाई यू यूज देयर डबल एफ इंस्टेड ऑफ सिंगल एफ। अच्छा, उसने पूछा, मैं कमेंट्स देख नहीं रही थी। नहीं मैम तभी बता रही है आपको, हाँ, उसको क्लियर कर दो थोड़ा सा। हाँ, मैं बता देती हूँ।
डबल ऑफ का मतलब है, मतलब हटाना कुछ, मतलब एक तो ऑफ होता है ना preposition, जैसे Yes. ठीक है, और डबल गवर्नमेंट सम बर्डन ऑफ द गवर्नमेंट शोल्डर्स, मींस मोढों से बाहर हटा दिया उसने। हटा तो Yes. ऑफ, मैं एक मिनट डिक्शनरी खोलती हूँ, एक जस्ट गिव मी 1 सेकंड। इट्स अ गुड पॉइंट है, छोटी छोटी बातों से अगर आपका जो है समझ आने में कुछ प्रॉब्लम। OFF, ऑफ Off. होता है हाँ, अवे फ्रॉम ए प्लेस, ठीक है। तो ऑफ का ये भी मतलब है समथिंग हैज बीन रिमूव्ड, ठीक है। ही हैड हिज बियर्ड शेव्ड ऑफ। Off. Yes. टेक योर कोट ऑफ, कोट उतार दो, ऐसे ही मतलब ऑफ गवर्नमेंट के मोडों से बाहर हटा दो, मतलब किसी चीज को उतारना। हाँ Simply. हटाना। नो लॉन्गर कोई चीज नहीं होनी, उसको वेडिंग इज ऑफ, वेडिंग अब तो कैंसिल हो गई है, उसको उसके लिए भी ऑफ होता है, ठीक है। स्विच Yes. ऑफ करो, टीवी को ऑफ कर दो, उसमें भी डबल ऑफ आता है, ठीक है। अवे, शी इज ऑफ टुडे मींस अवे फ्रॉम वर्क और ड्यूटी। टेकन फ्रॉम द प्राइस, $20 ऑफ है किसी चीज के, तो उसकी प्राइस में से इतने आपको कंसेशन मिल रहा है, ठीक है। तो ये है ऑफ का। ये ऑफ के कितने मीनिंग्स है, ओ माय गॉड, इतना छोटा Yes. इट्स फुल ऑफ मीनिंग्स। तो इट इज, अब इसकी प्रोनाउंसिएशन भी देख लो। देखो ब्रिटिश कहते हैं ऑफ क्योंकि ओ, और अमेरिकन कहते हैं ऑफ, ऑफ, ओके। चलो एनीवेज, सो ठीक है, आई होप द टुडेज क्लास हैज बीन फ्रूटफुल फॉर यू, ठीक है। कुछ समझ आया आज? Yes, ma'am. Of course. और आपको ये पता चल गया एग्री डिसएग्री में जो है पार्शली एग्री कभी मत लिखना। मेरे ना एक्चुअली बहुत, मैं आपको बता रही हूँ, बहुत केसेस हो चुके हैं। मेरे अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको मैं 7 से कम कभी रेट नहीं करती थी, और पार्शली एग्री करके लिखाते हैं इंट्रोडक्शन, आई पार्शली एग्री विद द गिवन स्टेटमेंट, और फिर थीसिस बन नहीं पाता, और 7 वाले स्टूडेंट 6 बैंड लेके निकले बाहर। मुझे बड़ा दुख लगता था कि इसके 6 रह गए, मतलब मुझे उम्मीद होती थी कम से कम 7 तो आने स्टूडेंट के। तो जी। वो मैं बड़ी बार ऐसे, फिर मैं ये नतीजा निकाला कि मैंने बच्चों को बोल देना है, as far as you are concerned, my students are concerned, don't use the word partially agree, क्योंकि Yes. आप ना कभी भी किसी एक चीज के साथ एग्री और डिसएग्री नहीं कर सकते हो। You can At the same time. strongly, you can agree strongly, or you can agree with a concession, ठीक है। और कंसेशन देने का मतलब है सिर्फ आपने दूसरी साइड के पॉइंट लिखने हैं, पर आपने मतलब वो एक तरह से उसको कंसीड करना है कि हाँ वो जो कह रहा है उसमें कुछ सच्चाई है, पर मैं फिर भी इसके साथ एग्री कर रही हूँ जो ये कह रहा है, समझ गए एक तरह से, Yes. ठीक है। उसमें उसको कंसेशन कहते हैं, टू कंसीड टू समथिंग एंड स्टिल यू आर एग्रीइंग और डिसएग्रीइंग, ओके। So we'll get back on Monday now, and after this class I'm going to share this file with the 3 essays. मैंने 3 के headings लिखे थे, तीनों share कर दूंगी, and try writing the intros and conclusions of agree disagree essays also, and try writing the intros and conclusions of positive negative development. आज आप इस हफ्ते बैठ के weekend पे positive negative development जितने बुक में ऐसे हैं सबकी इंट्रोज कंक्लूजन देखो, आपको समझ आ रही हैं। ऐसे ही एग्री डिसएग्री ऐसे उठाना और इंट्रोडक्शन पढ़ के देखना आपको इंट्रो से समझ आ रहा है एग्री डिसएग्री, ठीक है। और I have a question. यस, ये जो आप ऐसे करवा रहे हो मैम, वो जीटी में भी यूज हो जाएंगे या फिर ये एकेडमिक वाले हैं? ये एकेडमिक बुक से लिए हैं, पर इंटरव्यू वाला ऐसे जीटी बुक में भी सेम आया हुआ है। और दूसरी बात, एसे को हैंडलिंग सिखाई है ना मैंने आपको, Yes. उसमें जीटी और एकेडमिक दोनों में हैंडलिंग ऑफ द एसे रिमेन्स द सेम, पर टॉपिक्स जो मैंने उठाए थे वो एकेडमिक बुक से उठाए थे आज, ठीक है। पर हैंडलिंग ऑफ द एसे रिमेन्स द सेम, एंड सी एसेज और रिटायरमेंट एज का एसे भी जीटी बुक में है। तो ये तो दोनों एसे जो मैंने आज उठाए हैं ना, ये दोनों बोथ फॉर जीटी एंड एकेडमिक है। सो दिस क्लास इज अ वेरी गुड क्लास ऑफ बोथ एकेडमिक एंड जीटी। दोनों एसे Yes. सेम एकेडमिक बुक में भी है और जीटी बुक में भी है, ठीक है। सो Okay, ma'am. आज की क्लास में ऐसा कोई फर्क नहीं है। ऑफ का मीनिंग भी आपको समझ आ गया ना, बर्डन ऑफ। Yes. चलो ओके, बाय। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. The mock test also. Okay, okay, bye. Okay, ma'am. Bye.